जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जिस दिन दी गुरु जी ने मेरी बांह फड़ी आ, मेरी जिंदगी सवर गई है। ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਰਵਸ ਸੀਗੀ ਦਸੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਝੂਮਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। 5-6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ SHO ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ 751 ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
बड़ी मैं परेशान। मैं बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਰੋਂਦੀ ਕਲਾਂਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। मेरे बेटे के बर्थडे के कुछ दिन पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा। रात भर वॉमिटिंग करता रहा और अगले ही मॉर्निंग हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। हम हॉस्पिटल गए, उसके टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया और उसे एडमिट करने को कहा। तो हॉस्पिटल के बाहर आकर मैं कुछ सेकंड के लिए तो बहुत रोई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हॉस्पिटल का मुंह तो भगवान किसी को ना दिखाए। फिर भी हमें था चलो अब डॉक्टर ने कह दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, एडमिट तो होना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप ही हो, आपने ही देखना है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने बेटे को बिल्कुल सही करके निकलना है और अपनी कृपा मेरे बेटे पे बनाए रखना। और हम एडमिट हुए। मेरा बेटा, उसका ट्रीटमेंट चला और ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे उन्होंने बताया कि 5 दिन तो रखते ही हैं, एडमिट करते हैं जिन बच्चों को, 5 दिन का ट्रीटमेंट तो चलता ही है। बट मेरे बेटे का बर्थडे था 1 दिसंबर को, तो मुझे था कि मुझे इसका बर्थडे हॉस्पिटल में तो नहीं मनाना है, मुझे घर जाना है हर हाल में। बस मैंने गुरु पास से प्रेयर करी, प्रार्थना करी कि गुरु जी प्लीज़ किसी भी तरह से डॉक्टर बस छुट्टी दे दे इसके बर्थडे वाले दिन। 3rd डे हुआ। 4th डे की स्टार्टिंग में सुबह डॉक्टर आए, मतलब राउंड पर आए। मैंने बस यही प्रेयर करी मन में कि गुरुपा जैसे ही डॉक्टर आए बस वो खुद से ही कह दें कि आज छुट्टी मिल जाएगी। और उसके नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था, तो और अगले दिन संडे था। संडे को तो पॉसिबल ही नहीं था कि छुट्टी मिले, फिर मंडे पर बात चल जाती। तो इसलिए मुझे था कि उसी दिन छुट्टी मिल जाए। सैटरडे का दिन था जो, तो डॉक्टर आए, सभी बच्चों को देखा उन्होंने। जैसे ही मेरे बेटे को देखा, उसकी रिपोर्ट देखी, तो मैं बस मन ही मन गुरुजी का नाम ले रही थी। और मैंने जैसे ही डॉक्टर का फेस देखा, बस वो रिपोर्ट पढ़ते रहे। फिर कहते ठीक है, फिर छुट्टी दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली, मुझे बस ऐसा लगा कि गुरुपा ने ही सब कुछ किया है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी वजह से मेरा बेटा अपने बर्थडे के 1 दिन पहले घर आ पाया। और वो सिर्फ 2 साल का था, 2 साल का है, मतलब 2 साल फिनिश हो के अब उसको 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है। तो
इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और मेरे मम्मी आंटी लास्ट मंथ बीमार थे, बहुत ज़्यादा एकदम से बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। और वहाँ पर कुछ बहुत ऐसी अजीब सी चीज़ें हो रही थी कि हमें खुद नहीं कुछ समझ आ रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मेरे मम्मा आंटी ने मेडिसिन लेनी बंद कर दी थी और वो बस यही बात बोली जा रहे थे। 3-4 दिन हो चुके थे उनको एडमिट हुए और वो एक ही बात रिपीट करने लग गए थे एक दिन कि मुझे सोना नहीं है। वो काफ़ी दिनों से सो ही नहीं रहे थे, 4-5 दिन हो चुके थे। तो वो कह रहे थे गुरुजी मेरे साथ है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें सोना नहीं है और तुम मुझे बार बार सुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें नहीं सोना है, मैं तुम्हें जाग के रहो, मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी और हमें लग रहा था कि मम्मा की मेंटली हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरे बड़े जो सिस्टर आंटी है वो पुणे में रहते हैं, वो मेडिकल लाइन में ही है। फिर उनको बुलाया हमने, उन्होंने आके मम्मा को हैंडल किया, मेडिसिन्स वगैरह उनकी स्टार्ट करी। एंड बहुत एक तरह से उम्मीद सी ऐसी हो रही थी कि मम्मा अब ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो सच में बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको शायद सच में ही गुरुजी दिख रहे थे और गुरुजी उनके साथ थे और उन्होंने ही उनके सारे कष्ट काटे हैं। थैंक यू गुरुपा, आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है। अभी भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो गुरुजी आपको पता है, आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। मेरी सिस्टर और हम लोग सभी कुछ ऐसे स्कैम में फंस गए हैं कि लोगों का पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गुरुपा प्लीज़ आप सही रास्ता दिखाएं और हमें इस चीज़ से बाहर निकालें, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो कंपनी दोबारा से स्टार्ट हो और लोगों का पैसा वापस मिल जाए। और मेरे दीदी जो हैं, दीदी आंटी जीजू अंकल, उनकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हर एक मेरा काम इतना बढ़िया करवाया संगत जी, जिसका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी कि मैं समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे हम डिप्रेशन में चले गए थे, मम्मी डैडी और मेरे हस्बैंड अंकल और क्या मेरे देवर, सब इतने उसमें चले गए थे संगत जी हम डिप्रेशन में कि हमें निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी, मैं तो बिल्कुल ही फैल गई थी, बीपी लो हो गया था संगत जी, और इतनी टेंशन दिमाग में हो गई थी संगत जी। और ये सोच रहे थे कि अब हम करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे। संगत जी, देवर का रिश्ता तय हुआ था, तो संगत जी उस लड़की की तरफ से रिश्ता टूट गया था, पहले वाली की तरफ से। तो संगत जी, उसके बाद हमने दूसरी जगह रिश्ता करा। तो संगत जी, वो लड़की जैसे ही रोक लगन सगाई आने का टाइम आया, तो संगत जी एक दिन पहले पुलिस को लेके आके खड़ी हो गई और वो लड़की हमें परेशान करने लगी और पुलिस वालों ने भी हमें बहुत दुखी किया उसके बाद। तो संगत जी, जैसे ही वो पुलिस लेके आई तो मैं बाबा से अरदास लगाई और गुरुजी से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की और बाबा से कहा, बाबा मैं आपको लेके साथ में जा रही हूँ, आप मुझे लेके अंग संग सहाय रह के थाने में चलिए और गुरुजी इस मसले को हल करवाइए। और गुरुजी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ गुरुजी मैंने आपके चरणों में सरेंडर करके रखा है संगत जी। तो जैसे ही संगत जी हम थाने पहुंचे, तो संगत जी मैंने पति अंकल नहीं भेजे और न ही मैंने देवर को भेजा और न ही मैंने अपने ससुर को भेजा। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने 2 बार हम गए वहाँ पे उस दिन, तो कोई बात नहीं हुई और संगत जी बोले कि पति अंकल को भेजो और ये फैसला यहीं हो जाएगा। संगत जी, उन्हें पैसे लेने की ट्रिक थी और हमने वो भी सहन किया। गुरुजी महाराज ने हमारा सस्ते में ही पीछा कटवाया संगत जी। जहाँ वो 50,000 मांग रहे थे
पुलिस वाले वहाँ 25,000 में ही पीछा कट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। तो संगत जी हम 25,000 दे के हस्बैंड अंकल को निकलवा के लाए, जब उन्होंने धोखे से उन्हें बिठा लिया और फिर वो छोड़ा नहीं संगत जी। फिर उसके बाद हमने 25,000 रुपये दिए, 50 मांग रहे थे संगत जी। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने 25,000 में ही मेरे पति हस्बैंड को छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी ने मेरी जिंदगी में इतने मेडिकल किए, इतने चमत्कार किए हैं, इतने मेडिकल किए हैं कि मैं जिसका शुक्राना कर ही नहीं सकती संगत जी। गुरु जी का शुक्राना शब्द बहुत कम है संगत जी। संगत जी सॉरी, संगत जी सॉरी बाबा जी, मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, ना सुबह को कर पाई थी और ना शाम को कर पाई थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी देखिए, जैसे ही हम रोक लगन से करके आए तो संगत जी बहुत प्यारा मसला हल हुआ हमारा, बहुत अच्छी खुशी मनाई हमने, इतनी रौनकें लगी संगत जी, घर में इतनी खुशी मनी कि बहुत ही ज्यादा। और गुरुजी ने मुझसे कहा था रोक लगन वाले दिन कि बेटी मैं तेरे घर आऊंगा और तू पहचान लियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। तो देखो संगत जी, मैरिज होम में रोक लगन थी और गुरु जी कैसे आते हैं, कैसे दर्शन देते हैं और कैसे मुझे गले लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जब बहुत रिश्तेदार आ गए तो बीच में एक आंटी आई और उनका चेहरा टेढ़ा था और कुबड़े उनके दांत थे और ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था और वो एकदम देखते ही बोले कि और बेटी ठीक हो? मैं बोली हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कह लगी नहीं आंटी जी मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो बोली कि हम जड़िन्ने से हैं और वो जो अंकल आते हैं जड़िन्ने वाले हम उनकी भाभी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संग जी मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और मैं एकदम मैंने पहचाना कि तो मेरे गुरु जी आ गए। तो संग जी जैसे ही मैंने उनके पैर छुए तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आशीर्वाद देते हुए बोला कि आप अपना ध्यान रखना और आप ठीक रहना, और मुझे गले से भी लगाया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो हंसते रहे और मैं उन्हें देखती रही और मैं समझ गई कि ये बाबा जी आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हकीकत में ही गुरु जी हर एक उसमें आते हैं। गुरु जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है संगत जी। गुरु जी से एक बार बोल के तो देखिए, गुरु जी हर संकट में से निकाल देते हैं, हर कष्ट में से काट के रख देते हैं संगत जी, हर कष्ट को काट के रख देते हैं संगत जी। गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं संगत जी। मेरे पेट में ऐसा 2-3 दिन से अफारा सा आ रहा है संगत जी, आप ही मेरी गैस बन जाती है और फिर मुझे लैटरिन लगती है संगत जी। गुरु जी ने कहा कि बेटे चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे पास। नेगेटिविटी करने वाले बहुत परेशान कर रहे हैं संगत जी। संगत जी मैंने गुरु जी के चरणों में सरेंडर करके रखा है कि बाबा जो भी करना, जैसे भी करना आपने करना है, मैंने आपके चरणों में सरेंडर करके रखा है गुरुपा। तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी देखो मैं शादी में लगी, मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ा है और मेरे गुरु जी ने मुझे इस तरह से निकाला है संगत जी कि मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक बीमारी से बचाया संगत जी। गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितनी मैं गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरी ज़िंदगी बचाने का शुक्राना शुक्राना, मुझे हर समय ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। और संगत जी फिर एक सत्संग हो रहा है कि मैं डर रही थी कि शादी पता नहीं कैसे निपटेगी, यही हमें सबको डर खाया जा रहा था कि वो धमकी देके गई थी कि मैं फिर आऊँगी, मैं शादी होने नहीं दूंगी। और संगत जी हमको ये डर सताया जा रहा था। और संगत जी देखो पुलिस अंकल जी ने कैसी चाल चली, हमने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की कि देखो आप ही हमें संभालोगे पुलिस अंकल, ऐसे ऐसे बात है। हमने उनको सारी अपनी विपदा बताई तो संगत जी उन्होंने हम पे ये विश्वास किया, यकीन किया। और उस लड़की का जैसे ही कॉल आया तो उन्होंने कहा पुलिस अंकल ने कि देखो मैं छुट्टी पर हूँ 5 तारीख तक, उसके बाद मैं कोई कार्रवाई करूँगा। संगत जी वो रात भी हमें फ़ोन करके बता रहे थे, दरोगा साहब बोल रहे थे थानेदार कि
आपने जल्दी शादी निपटा लो, और वो लड़की बहुत परेशान है और वो भागने को तैयार है, तुम्हारे घर में घुसने को तैयार है संगत जी। और देखो हमने कल बहुत अच्छे से शादी, हमने नहीं, हमारे गुरुजी ने हमसे निमटवाई और इतने अच्छे फेरे वेरे करवाए संगत जी, इतनी अच्छी हमारी स्टेज सजवाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। इतनी प्यारी गुड़चड़ी करवाई, इतनी प्यारी चढ़त करवाई मेरे बाबा ने, इतनी खुशी मनाई संगत जी, इतनी खुशी मनाई, इतनी रौनकें लगी कि संगत जी जिसका कोई जवाब नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हुई विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं, हर वेले दर्शन देते हैं, हर समय हमें ब्लेस करते हैं। मेरे गुरु जी ने हर एक डोर मेरी ऐसे संभाल के रखी है संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे घर में बैठा हुआ मैं साक्षात विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी कि जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मेरी जिंदगी में ऐसे ही चमत्कार करवाते रहे और मैं ऐसे ही गुणगान करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने गुरु बा के आशीर्वाद से पूर्ण कर लिया है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे इस जर्नी में गुरुपा ने बहुत ही हिम्मत दिया, बहुत साहस दिया। मैंने इसके अपने इस लड़ाई में, इस जंग में मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए इसके लिए। लेकिन आज मैं गुरुपा जैसा कहते हैं कि पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद मैं वेल्थ और सब चीज़ें ब्लेस करता हूँ। तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो अनुभव कर रही हूँ कि गुरुपा ने पहले मेरे हेल्थ को ब्लेस किया। आज मुझे 7, 8, 9 महीने का टाइम हो गया। मेरी इस लड़ाई में गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे, मेरा हर पल हर जगह साथ दिया। उसके बाद संगत जी हम लोग काफ़ी दिनों से मेरा अपना खुद का मकान है, बट हम लोग कहीं एक लैंड लेना चाह रहे थे, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से परेशान थे, बट बहुत जगह देखा लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मैंने गुरुपा पे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी दिन तक, 7, 8, 9 महीने तक। जैसा कि संगत जी आप लोग जानते हैं कि इस बीमारी में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और ये बीमारी ही ऐसी है कि इसमें हिम्मत के साथ साथ जो लड़ाई है, बहुत कठिन लड़ाई होती है। पैसे भी बहुत होने चाहिए, तभी कोई अपना इलाज सही से करा सकता है। तो संगत जी हम लोगों ने 8, 9 महीने 10 महीने तो कि लैंड परचेज करने के लिए सोचा ही नहीं था। लेकिन उसके बाद गुरुपा के आशीर्वाद और गुरुजी की ब्लेसिंग हम लोगों के हमेशा साथ में थी। और अभी शिवरात्रि वाले दिन संगत जी मैं इसीलिए शुक्राना सत्संग शेयर करनी चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने शिवरात्रि के दिन मुझे एक लैंड ब्लेस किया। हम लोगों ने उसका टोकन मनी भी दे दिया है। अभी मेरी रजिस्ट्री 8 तारीख को होनी है, बट मैंने कुछ अमाउंट दे दिए हैं और मैंने उस लैंड को चारों तरफ से ईंटें से घिरवा भी लिया है, सब कुछ कर लिया है। ये मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से है। गुरुपा ने पहले हेल्थ दिया, उसके बाद जो इच्छा है गुरुपा उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का कोटि 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 कोटि
अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, महाशिव हैं। वो अपने बच्चे की हर बात सुनते हैं, हर बात पूरी करते हैं। मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग इसीलिए करना चाहती हूँ। गुरुपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में गुरुपा से अरदास थी कि गुरुपा आप, मेरी ये इच्छा है गुरुपा, बाकी आपकी इच्छा। मैं चाह रही हूँ एक लैंड परचेज करना, लेकिन वो आपकी इच्छा है, आप जब चाहोगे तभी होगा। तो मेरे गुरुपा ने वैसे ही किया। गुरुपा ने मेरे चाहा और उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन हम लोगों ने पूजा पाठ किया। उसके बाद मेरा बहुत बड़ा काम हुआ। इसके लिए गुरुपा को फिर से बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बैंक में काम करते हैं, मैनेजर हैं, बट वहाँ भी दिक्कत हो रही है और वो वहाँ से स्विच करना चाहते हैं। दूरी भी काफ़ी है घर से। बनारस से चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जाना 40-45 किलोमीटर आना जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन भी डाल दिया है। अब वो दूसरे बैंक में चाह रहे हैं कि मेरा दूसरे बैंक में और अपने डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में हो जाए। अब गुरुपा से मैंने अरदास की है। गुरुपा जब भी उस करेंगे मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा की इच्छा, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो हम लोग जितना सोचते हैं गुरुपा हम लोगों के बारे में उससे ज़्यादा सोचते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को देते हैं। इसलिए हम लोग मांगने वाले कुछ नहीं होते हैं। ये सब चीज़, भौतिक चीज़ों को बस गुरुपा का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, बस यही संगत जी बहुत है। अगर गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा की कृपा है, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ है गुरुपा के लिए, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत नॉमिनल सी चीज़ है। इसको कभी मांगते नहीं हैं। ये गुरुपा अपने बच्चे की सभी बात जानते हैं कि वो मेरा बच्चा क्या चाह रहा है, उनको सब कुछ पता होता है। वो अपने बच्चे की हर एक इच्छा बिना कहे पूरी करते हैं। बस हमें पूरा विश्वास होना चाहिए गुरुपा पे और अपने आप को गुरुपा के आगे सरेंडर कर देना चाहिए कि गुरुपा अब आप ही देखो, आप ही मेरे सब कुछ हो, जो हो सो आप हो, आप ही मेरा सब कुछ करो। आपकी जो इच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे देना, जो मेरे लिए नहीं अच्छा हो मेरे लिए वो भी आप ही देखना। जो अच्छा है बुरा है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप ही हो। सब कुछ सर्वदाता सर्वशक्तिमान, सब कुछ आप हो। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, धन्यवाद। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।